کیا میں دوبارہ کوشش کروں، کیا ہم کھیلیں، کیا میں اس کا خیال رکھوں۔ اس لیسن کے اندر میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ کیسے ایسے فقرات انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ایسے فقرے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے: شیل پلس سبجیکٹ، سبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب، جس کو بیسٹ فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے ادر ورڈس، اور ادر ورڈس کے بعد آ جایا کرے گا کوسچن مارک اگر لکھنا ہے تو۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کیا میں دوبارہ کوشش کروں یعنی کیا میں دوبارہ ٹرائی کروں، ایک قسم لا پرمیشن ہے: شیل آئی ٹرائی اگین، شیل آئی ٹرائی اگین۔ آئی یہ سبجیکٹ ہے، ٹرائی یہ V1 ہے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: کیا ہم کھیلیں، شیل وی پلے، شیل وی پلے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: کیا میں اس کا خیال رکھوں، شیل آئی ٹیک کیئر آف اٹ، شیل آئی ٹیک کیئر آف اٹ۔ بالکل ہم اس اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کیا میں تمہارے لیے ناشتہ بناؤں، شیل آئی میک یو بریکفاسٹ، شیل آئی میک یو بریکفاسٹ۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: کیا ہم چلیں، شیل وی گو، شیل وی گو۔ کیا میں شروع کروں، شیل آئی اسٹارٹ، شیل آئی اسٹارٹ۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: کیا میں اسے بلاؤں، شیل آئی انوائٹ ہم، شیل آئی انوائٹ ہم۔ کیا ہم سو جائیں، شیل وی سلیپ، شیل وی سلیپ۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: کیا میں وہاں بیٹھ جاؤں، شیل آئی سٹ اوور دیر، شیل آئی سٹ اوور دیر۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: کیا ہم کھانا منگوائیں، شیل وی آرڈر فوڈ، شیل وی آرڈر فوڈ۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ: کیا میں تمہیں بعد میں فون کروں، شیل آئی کال یو لیٹر، شیل آئی کال یو لیٹر۔ اور آخر میں یہ دو فقرات آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا: کیا اب ہم چلیں، کیا اب ہم چلیں، اور دوسرا فقرہ ہے کیا ہم کل ملیں۔ اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے: لیو پلس آبجیکٹ پروناؤن یعنی می، اس، یو، ہم، ہر، دم۔ اس کے بعد آ جایا کرے گا اون، اور اون کے بعد لکھیں گے ہم پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی، یور، آور، ہز، ہر، دیم۔ اس کے بعد آ جایا کرے گا اون ریسورسز۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، لیو ہیم آن ہز اون ریسورسز، لیو ہیم آن ہز اون ریسورسز۔ ہیم یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے اور ہز یہ پوزیسو ایڈجیکٹو ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اچھی طرح سمجھنے کے لیے۔ مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو، لیو می آن مائی اون ریسورسز، لیو می آن مائی اون ریسورسز۔ می یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے اور مائی یہ پوزیسو ایڈجیکٹو ہے۔ لیٹس موو آن، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، لیو اس آن آور اون ریسورسز، لیو اس آن آور اون ریسورسز۔ اس یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے اور آور یہ ہمارا پوزیسو ایڈجیکٹو ہے۔ بالکل ہم اس اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ لیٹس موو آن۔ اس لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دو،
इस लड़की को उसके हाल पर छोड़ दो। लीव दैट गर्ल ऑन हर ओन रिसोर्सेज। लीव दैट गर्ल ऑन हर ऑन रिसोर्सेज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो। उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। अगर हो सके तो उसकी मदद करना। अगर हो सके तो मुझसे मिलना। अगर हो सके तो उसके लिए इंतज़ार करना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर हो सके तो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ पॉसिबल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इफ पॉसिबल प्लस कामा अगर लिखना है तो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इफ पॉसिबल ये वही का वही रहेगा विच मीन अगर हो सके तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर हो सके तो उसकी मदद करना। इफ पॉसिबल हेल्प हर। इफ पॉसिबल हेल्प हर। अगर हो सके तो मुझसे मिलना। इफ पॉसिबल मीट मी। इफ पॉसिबल मीट मी। अगर हो सके तो उसके लिए इंतज़ार करना। इफ पॉसिबल वेट फॉर हर। इफ पॉसिबल वेट फॉर हर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर हो सके तो सब्जी ले आना। अगर हो सके तो सब्जी ले आना। इफ पॉसिबल गेट वेजिटेबल। इफ पॉसिबल गेट वेजिटेबल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर हो सके तो मुझे भूल जाना। अगर हो सके तो मुझे भूल जाना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। बाई होता किस लिए है। बेहन होती किस लिए है। घर होता किस लिए है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ के रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाट इज प्लस ऑब्जेक्ट यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं प्लस फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बाई होता किस लिए है। व्हाट इज ब्रदर फॉर्म। व्हाट इज ब्रदर फॉर्म। बेहन होती किस लिए है। व्हाट इज सिस्टर फॉर्म। व्हाट इज सिस्टर फॉर्म। घर होता किस लिए है। व्हाट इज हाउस फॉर्म। व्हाट इज हाउस फॉर्म। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। दोस्त होता किस लिए है। दोस्त होता किस लिए है। व्हाट इज फ्रेंड फॉर्म। व्हाट इज फ्रेंड फॉर्म। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उस्ताद होता किस लिए है। उस्ताद होता किस लिए है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। वो अपने पैसों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है। वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है। मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पूरा पूरा फ़ायदा उठाना, पूरा फ़ायदा उठाना या फ़ायदा उठाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक द मोस्ट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेक द मोस्ट ऑफ। मेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपने पैसों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी। वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है। शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई इलनेस। डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई इलनेस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो मौके का फ़ायदा उठाता है। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा मत उठाओ।
तुम उसकी कमजोरी का फ़ायदा मत उठाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। इसमें रोने वाली क्या बात है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, इसमें हंसने वाली क्या बात है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, वस देयर टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इसमें रोने वाली क्या बात है, वस देयर टू क्राई, वस देयर टू क्राई। इसमें सोचने वाली क्या बात है, वस देयर टू थिंक, what's there to think। इसमें हंसने वाली क्या बात है, what's there to laugh, what's there to laugh। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है, what's there to lie, वस देम टू लाई। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसमें छुपाने वाली क्या बात है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो, कहीं ऐसा न हो कि वो पढ़ रहा हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम जा रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, लिस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो, कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो। लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग, लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। कहीं ऐसा न हो कि वो पढ़ रहा हो, लेस्ट ही शुड बी स्टडीइंग, लेस्ट ही शुड बी स्टडीइंग। कहीं ऐसा न हो कि तुम जा रहे हो, लेस्ट यू शुड बी गोइंग, लेस्ट यू शुड बी गोइंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। कहीं ऐसा न हो कि वो खाना बना रही हो, लेस्ट शी शुड बी कुकिंग फूड, लेस्ट शी शुड बी कुकिंग फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कहीं ऐसा न हो कि वो आ रहा हो, कहीं ऐसा न हो कि वो आ रहा हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।